Hello, Assalamu alaikum students. This is your teacher Askabat and I teach accounting and business to the O levels and A level students. Okay, so आज जो पेपर हम करने जा रहे हैं which is your paper 1 and variant 2 and इसी वीडियो में we will try to solve the paper 3 variant 3 also. And this is your latest paper, May June 2023 for O levels accounting. Code is 7707. So let's start this paper. Okay. So first of all, what is the main function of bookkeeping? Bookkeeping का जो main function है वो क्या होता है? So we all know that communicating information and interpreting and summarizing information. Mainly these functions basically taken by the managers. Only recording information, it is done by the bookkeeper. So our right answer is C. Okay. So second में, which components of a statement of financial position do description 1, 2 and 3 relate to? Okay. So first है आपका finance and other resources that have been provided by the owner. So we all know that finances and resources and the investment which is provided by the owner, this is basically our capital. So capital एक तो आपका 1 में C में है और एक D में है, ठीक है. Secondly, money owed for goods supplied, unpaid expenses and loans made to the business. So we all know that unpaid expenses is also our liability, and the money we owe to our suppliers is also our current liability, and the loans can be our current or non-current liabilities also. So liabilities वाला जो आपका आंसर है वो सिर्फ D में है and B में है. Okay. Property owned by the business, amounts owed by the customers, unsold goods and money in the bank. So unsold goods, this is basically our unsold inventory. Money in the bank, this is also our asset. This is also our current asset. Our trade receivables are our current assets. And this property which is owned by the businesses is basically our non-current asset. So non-current assets means simply assets. So assets का option आपके पास सिर्फ और सिर्फ D में है. So it means that D is the right option. Okay. A check received from Kate, a credit customer, was dishonored. ठीक है. Dishonor हो गया check. How was dishonored check recorded? ठीक है. Dishonored check को हम record किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले जब भी चेक आपको कस्टमर से मिलता है तो आप कौन सी एंट्री बनाते हैं? बेसिकली बैंक को जो है वो आप डेबिट करते हो और कस्टमर यानी कि जो केट है वो आपका क्रेडिट होता है, बिकॉज कस्टमर इज डिक्रीजिंग इन दिस सिनेरियो एंड योर एसेट विच इज बैंक इज इंक्रीजिंग. सो बैंक को डेबिट करते हैं और केट को क्रेडिट करते हैं. तो अगर डिसऑनर हो जाता है चेक तो इस इन्वेंट्री को क्या करते हैं? इस इन्वेंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं. सो रिवर्स होगी तो इट मीन्स बैंक क्रेडिट एंड केट डेबिट. सो बी इज द राइट ऑप्शन. What does a sales ledger for a business contain? Sales ledger में क्या चीज जो है वो इंक्लूड है? ठीक है. ट्रेड पेबल के अकाउंट बिल्कुल भी नहीं होते क्योंकि ये कस्टमर से रिलेटेड है. अकाउंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, हाँ जी, ये इसमें इंक्लूडेड है. सेल्स अकाउंट भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है. सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी इसमें इंक्लूड नहीं, क्योंकि सेल लेजर में आपके कस्टमर के अकाउंट होते हैं और सेल लेजर कंट्रोल में आपके ऑल कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो not the part of the sale ledger. Okay. Which action in is an example of double entry bookkeeping? ठीक है. Making a journal entry to record the correction of an error made in the ledger. Ledger में अगर कोई आप लेट्स सपोज कि आपने कोई जर्नल एंट्री बनाई है, वो इसलिए क्योंकि आपने लेजर के अंदर कोई एरर किया था. तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ए डबल एंट्री सिस्टम. Making entries in the sales journal and the sale ledger to record goods sold on credit. तो यहाँ पर भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा. इट मीन्स कि एक ही ट्रांजैक्शन को हम दोनों जगहों पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. एक जगह पे डेबिट हो रहा है, दूसरी जगह पे क्रेडिट हो रहा है. तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम.
रिकॉर्डिंग अ चेक पे टू अ ट्रेड पेबल इन कैश बुक एंड परचेज लेजर। हाँ जी, इसमें क्योंकि चेक अगर आपने पे किया है तो इट मीन्स दैट कैश बुक में आप इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर रहे होगे और परचेज लेजर के अंदर भी आप इसको रिकॉर्ड कर रहे होगे डेबिट साइड पे। सो दिस इज बेसिकली योर डबल एंट्री सिस्टम। सो सी इज योर राइट ऑप्शन। रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एंड परचेज जर्नल एंड परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों एट अ टाइम नहीं किए जा रहे, तो दिस इज वाई दिस इज नॉट योर डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके, व्हाट इज ट्रू अबाउट द कैश डिस्काउंट रिसीव्ड? क्या ट्रू है? ओके, दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, कैश डिस्काउंट्स को जो है वो हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, दिस इज राइट। दे इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट को भी इंक्रीज करते हैं। बी, कैश बुक में ऑफ कोर्स करते हैं, बट ये प्रॉफिट फॉर द ईयर को रिकॉर्ड नहीं कर इंक्रीज नहीं करते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत है, तो ये नहीं है। एस सी वाले ऑप्शन में ये गलत है बट ये सही है, और ये यहाँ पे दोनों ही गलत है, तो इट मीन्स कि दोनों जहाँ पे सही है वो आपका ये वाला ऑप्शन। चलें, ताहिर प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस ताहिर ने प्रिपेयर किया। He entered both the balance on the discount allowed account 900 and the bank overdraft 750 in the wrong column। ठीक है, इसका मतलब है कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी और इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट को भी रॉन्ग कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। सो डिस्काउंट अलाउड बेसिकली डेबिट होना चाहिए था, बट इसको क्रेडिट कर दिया, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन इसको डेबिट कर दिया। And which total of the trial balance was higher and what was the amount of the difference between the debit total and the credit total? ठीक है, तो ये एक आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस बना। ओके, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था बट इसको क्रेडिट कर दिया, विच इज $900। $900, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट करना था बट उसको डेबिट कर दिया बाय $750 एंड $750। So the total is basically 750 plus 750, which is 1500. 900 plus 900, which is 1800। तो अगर आप इन दोनों को लेस कर लें तो आपका आंसर आता है 300। और बिकॉज डिस्काउंट अलाउड को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना था बट क्रेडिट साइड पे कर लिया, और बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट साइड पे करना था बट डेबिट साइड पे कर लिया, तो हैवियर साइड जो आपकी क्रेडिट साइड होगी, और डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका $300 से। सो बेसिकली ए इज योर राइट ऑप्शन। Goods sold on credit to J Sharp which were debited in the error to the accounts of T Sharp। ठीक है, so which type of error has been made? तो कौन सा एरर जो है वो इसमें किया गया है बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी साइड जो है वो करेक्ट है, क्लास बी करेक्ट है, लेकिन अकाउंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो होता है एरर ऑफ कमीशन। ना ही ये कंप्लीट रिवर्सल है, ठीक है, यानी कि एंट्रीज को रिवर्स नहीं किया गया, ना ही ये अमाउंट गलत लिखी गई है, ठीक है, और ना ही ऐसा है कि यहाँ पे क्लास भी आपकी इनकरेक्ट है। तो इसलिए ये कमीशन में क्या होता है कि आपकी साइड करेक्ट होती है, आपकी क्लास भी करेक्ट होती है, लेकिन अकाउंट रॉन्ग होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही बेसिकली
हमारे कस्टमर्स हैं, लेकिन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जे शार्प के बजाय आपने टी शार्प में अपनी सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। Khalid made entries in a suspense account to correct two errors found in his ledger accounts. Once the errors were corrected, the suspense account was closed. ठीक है, तो अब ये एरर जो है वो कौन सा है? एरर 1, 700 सेल्स हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स अकाउंट। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो सस्पेंस अकाउंट अपना एक रेडी कर लें, तो क्योंकि ये आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया एरर 1, तो अब अगर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, 700 सेल्स हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स अकाउंट। अच्छा, तो सेल्स बेसिकली हमारी क्रेडिट होती हैं, तो सस्पेंस जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा एंड सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। एंड एरर टू द परचेज जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 550। तो ये ओवरकास्ट हुआ है 550 से। ठीक है, तो परचेजेस जो है वो बेसिकली हम इसको अब डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसको ओवरकास्ट किया, तो कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और सस्पेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा। परचेजेस 550 से डेबिट क्रेडिट, एंड आपके पास जो है वो अब जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंस सी डी 700 and 550 is equal to 1250. So this is the balance will be on the credit side. Maya depreciates her motor vehicle at 25% per annum. Using the straight line method, the motor vehicle costs $15,000. Depreciation for the current financial year was incorrectly calculated at 15% per annum. How will correcting the error affect the profit for the year? चलें, ओके, सो बेसिकली 25% तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, लेकिन आपने 15% से कर ली और उसको रिकॉर्ड भी कर दिया। तो अगर हम इसको ठीक करें तो इससे प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल बन रही है उसकी वैल्यू क्या है। सो 15,000, और ये SLN के थ्रू है, तो सिंपली आप उसके ऊपर रेट लगाएंगे, इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई 25%। तो ये आ रहा है आपका $3750। अब न्यू देख लेते हैं, मतलब जिस जो मिस्टेकनली की है हमने वो है 15,000 मल्टीप्लाई 15%। ये मिस्टेकनली हुई है, दिस इज योर, यू कैन से द एरर। ठीक है, ये एरर वाली जो कि है $2250। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो अब एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपने चार्ज जो करना था इन रियल वो करना था 3750, लेकिन आपने 2250 रिकॉर्ड किया। तो जब आप इसको करेक्ट करोगे अब, ठीक है, अब जैसे आप इसको करेक्ट करोगे 3750 जो कि ये इन रियल रिकॉर्ड होना था, -2550 आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो मीन्स हमें पता है कि डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंस में ही चार्ज करते हैं। तो क्योंकि अब ये यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है बाय $1500, ठीक है, डिक्रीज हो गया है। क्या डिक्रीज हो गया है? आपका एक्सपेंस जो है वो आपका डिक्रीज हो गया $1500 से। तो इनकरेक्टली आपने रिकॉर्ड किया 2250, लेकिन करेक्टली जो है वो जब आपने रिकॉर्ड किया विच इज 3750, अगर आप इसको ठीक करते हो तो इससे आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा।
एक्सपेंस, सॉरी, आपका जो एक्सपेंस है बेसिकली वो $1,500 से बढ़ जाएगा। सो अगर इफ $1,500 से एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो इट मीन्स के प्रॉफिट जो है वो उससे कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है $1,500, इट विल डिक्रीज द प्रॉफिट। सो ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन। Okay. Wasim received a bank statement. He found that bank had charged interest twice in error and that a dividend had been received on an investment. ठीक है. Wasim then updated the cash book and prepared a bank reconciliation statement. Where did he record these two items? ठीक है. सो बेसिकली बैंक एरर जो है वो आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। यहाँ से आपका ए और बी ऑप्शन ठीक बन रहा है। जबकि डिविडेंड जो रिसीव हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट पे और आपने उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो आप अपडेटेड कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड करोगे। तो बेसिकली जहाँ पे हमारे दोनों आंसर करेक्ट हैं, विच इज़ योर बी ऑप्शन। ओके, थैम्बी इज प्रिपेयरिंग हर सेल एज द कंट्रोल अकाउंट, शी नीड्स टू नो द टोटल फॉर गुड्स विच हैव बीन रिटर्न बाय द क्रेडिट कस्टमर्स। ठीक है, मतलब उसको जानना है कि उसके क्रेडिट कस्टमर्स जो हैं उनका टोटल कितना उन्होंने गुड्स रिटर्न किया। द अमाउंट मतलब कि सेल्स विद कंट्रोल अकाउंट बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जो उसमें हमने रिकॉर्ड करनी है तो वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका चेक हो रहा है यहाँ पे। अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर्स विच हैव बीन रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। हम कौन सी जो है वो प्राइम बुक्स इसमें यूज करते हैं। तो अगर सेल्स रिटर्न बेसिकली कितने गुड्स रिटर्न हुए हैं तो उसके लिए हम लोग सेल रिटर्न जर्नल को चेक करते हैं। ठीक है, और अगर हमने इररिकवरेबल डेट्स देखने हो तो उसके लिए हम लोग जर्नल यूज करते हैं। तो इसमें जो आपका दोनों राइट ऑप्शन बन रहे हैं, सेल्स रिटर्न जर्नल एंड जर्नल विच इज ऑप्शन डी। ऑन 1 अगस्त on 1 August, sales ledger control account. Okay, on 1 August, the sales ledger control account had a debit balance of $1,800। ठीक है, तो हम यहाँ पे साथ साथ इसको बना भी लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जो डेबिट बैलेंस था वो था 1800। ड्यूरिंग द डेट ऑफ $2,000 was written off as irrecoverable debt। ठीक है, तो इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड 10,000 was received from credit customer। ठीक है, तो ये बैंक में चले गए आपके। On 31st August, the credit customers owed $3,000। ठीक है, balance CD which is $3,000। What was the total of credit sales? तो यहाँ पे सेल्स जो है वो बेसिकली आपने फाइंड करनी है, सेल्स फाइंड करनी है। ओके, तो आप इन दोनों को जो है वो यहाँ पे टोटल कर लें। 200, $10,000 एंड $3,000 विच इज इक्वल टू 13200, 13200 माइनस 1800। तो हमारे पास जो अब सेल्स आए हैं विच इज 11400। सो सी इज योर राइट ऑप्शन। ओके, a wholesaler had the following transactions। ठीक है, and sold
sold goods $30,000 on credit, ठीक है. Receive checks $12,000 from sale of old pictures at book value. How would these amounts be classified? अच्छा, अगर गुड्स सेल किए हैं फॉर इनकम, फॉर अर्निंग, तो ये हमें पता है कि रेवेन्यू रसीद है. इसके अलावा अगर हम कोई बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, कोई मशीनरी सेल कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली आर कैपिटल, तो अगर उसको सेल करके मे बी वी आर रिसीविंग समथिंग, सम अमाउंट इन आर बिजनेस, देयर आर इनफ्लो ऑफ एनी कैश, सो इट मीन्स दैट दिस वुड बी आर कैपिटल रिसीव. ठीक है. सो बेसिकली 30,000 जो है वो आपकी रेवेन्यू रसीद है, एंड 12,000 जो है वो आपका कैपिटल रसीद है. सो बेसिकली सी इज योर राइट ऑप्शन. Okay, a trader debited the cost of repairing office equipment to the office equipment account. How does this error affect the financial statement? ठीक है. So basically repairing cost जो office equipment की थी वो आपने गलती से office equipment account मतलब आपने asset के account में transfer कर दिया, यानी कि expense को आपने asset बना दिया. ठीक है. अगर एक्सपेंस कम कर दिया तो इट मीन्स के प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा, और अगर आपने जाहिर सी बात है कि एसेट को इंक्रीज कर दिया तो इट मीन्स के नॉन करंट एसेट ओवरस्टेट हो जाएगा. तो दोनों चीज़ें एट अ टाइम पे ओवरस्टेट हो रही होंगी. तो ओवरस्टेट 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 ओवरस्टेट, तो बेसिकली ए इज योर राइट ऑप्शन. ओके. तो a business about two assets, and business about two assets X and Y on 1st January 2022 for $2,000 each. It depreciates assets X, Y 10% per annum using the straight line method, and asset Y by 10% per annum using the reducing balance method. Which statement are correct? Asset X will be fully depreciated before asset Y, and in 2022 the depreciation charge is lower for assets X than for asset Y. तो हम एक बार जो है वो देख भी लेते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा. एक बार बस सॉल्व करके देख लेते हैं. तो बेसिकली एक्स एसेट के ऊपर जो है वो यूज हो रहा है SLM. 2,000 के ही दोनों हैं, मल्टीप्लाई 10% इज इक्वल टू 200, और ये हर ईयर में इतनी ही चार्ज होगी. ठीक है. लेकिन RBM जो कि वाई एसेट के ऊपर लग रहा है, 2,000 मल्टीप्लाई 10%, 2,000 minus 200, it is 1,800 net book value. 1,800 multiply 10% is equal to 180. 1,800 minus 180 net book value is equal to 1,620, और सो ऑन सो इसके ऊपर भी 10% जो है वो लगता जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका सी है, एसेट एक्स विल बी फुली डेप्रिशिएटेड बिफोर एसेट वाई, क्योंकि एसेट एक्स के ऊपर SLM यूज हो रहा है और वो तकरीबन 200 है, और ये बहुत जल्दी डेप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि RBM में भी नो कि एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती. सो दिस सीम्स करेक्ट, ये बोथ दोनों. In 2022 the depreciation charges is lower for asset X than for asset Y. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट एंड इनकरेक्ट. सो सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन. एसेट एक्स के लिए 200 आपकी डेप्रिसिएशन है, लेकिन उसके लिए भी 200 है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोअर वैल्यू चार्ज की जा रही है, लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है. तो दिस इज व्हाई योर this is the state that this statement is basically incorrect.
Okay. Ravi's financial years end on 30 April. Ravi bought a motor vehicle for $8,000 on 1st May 2020 and sold it for 4050 on 1st May 2022. He uses the reducible as method of depreciation at 20% per annum. What would be recorded in the income statement for the year ended 31st December 30 April 2023 for the disposal of the motor vehicle? ठीक है, तो ये है जी हमारा क्वेश्चन। अब ये हम लोग करेंगे। कॉस्ट आपकी एसेट की है $8,000। डेप्रिसिएशन 20% है, तो ये तकरीबन बनती है $1,600 की डेप्रिसिएशन। और नेट बुक वैल्यू 2021 में होगी 6400 की, अगर आप इन दोनों को लेस करें। ठीक है, अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 20%। तो अगर 6400 पे आप 20% लगाएं तो आपके पास आ रही है 1280। और नेट बुक वैल्यू अगर आप 6400 में से इसको माइनस करें तो 2022 की जो नेट बुक वैल्यू है वो होगी 5120। सो सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी वो है 4050, लेकिन जो नेट बुक वैल्यू है वो है 5120 2022 तक, क्योंकि 2 साल की चार्ज होनी थी इस पे, क्योंकि 2 साल के बाद जो है वो उसको बेचा गया। तो 450, तो यहाँ पे अब आप इसकी नेट बुक वैल्यू में से इसको माइनस कर लें। -4050 इज इक्वल टू 1070 लॉस। तो ये लॉस जो है वो बेसिकली हुआ है 1070 का। तो सी इज योर राइट ऑप्शन। On 2nd January, Razia wrote off $450 owed to her by Anity, a credit customer, as irrecoverable. On 2nd October, Anity paid $100 by check in the past part settlement of that debt. Which entries would Razia make on 2nd October? तो जाहिर सी बात है कि पहले उसने रिकॉर्ड किया था कि जो उसका क्रेडिट कस्टमर है बेसिकली ये क्रेडिट हो जाता और डेट जो है वो बैड डेट डेबिट हो जाता। तो अब क्योंकि उसने रिसीव किया है तो इसलिए यहाँ पे बैंक की एंट्री बनेगी डेबिट, जो कि दोनों साइड्स पे ए और बी ऑप्शन में है। और जो आपके डेट्स रिकवर हो गए हैं बेसिकली उसमें से 450 में से 100 रिकवर हो चुका है, तो डेट्स रिकवर्ड की एक क्रेडिट एंट्री बनेगी। तो ये एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेसिकली इसमें ए में ही दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। आशा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये दो तरह की प्रोडक्ट हैं। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ आशाज इन्वेंट्री? तो ये बहुत सिंपल है, दोनों में से किसी एक के ऊपर करेंगे इसको। या तो एनआरवी पे, जो कि सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस होती है, बट हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल नहीं है, ओनली सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। तो दोनों में से जो जो दोनों में से जो कम होगी उसके ऊपर हम अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 200 मल्टीप्लाई, ये लोअर है तो 2 पे ही होगी 3400, और इसमें ये लोअर है कॉस्ट प्राइस 300 मल्टीप्लाई 900, तो 400, सॉरी 400 प्लस 900 is equal to $300. So A is your right option. Which groups contains only service business? तो बहुत आसान है ये।
बुक शॉप, लैंग्वेज स्कूल, न्यूज़ एजेंट। तो बुक शॉप, this is not your service business. Language school is your service. News editing is not your service business. Jewelry repairer, taxi firm, food store. Food store is not your service business. Taxi firm is your service business. Jewelry repair, this is also your service business. Language school is service business. Taxi firm is service business. Jewelry repair is service business. So it seems that C is option is your right option. और इसमें अगर आप देख लें तो यहाँ पे जो है ये दोनों ही आपके सर्विस बिजनेस नहीं है। ठीक है। 21, व्हाट डज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस शो। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो हमें पता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें ये बताती है, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताती है, तो ये नहीं है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कंपनी अकाउंट्स के लिए यूज होती है, एंड इट डज नॉट टेल अस अबाउट the basically this is not the right definition of the financial statement of financial position. This is not option, and this is also not your option, so A is your right option. Her trader pays her insurance premium on 1st January. A trader pays her insurance premium on 1st January 2000 each year for the following 12 months. ठीक है। she made the following payments for insurance. 1 जनवरी 2022 को उसने 1680 पे किए, 2023 में उसने 920 पे किए। हाउ मच डिड द ट्रेड इंक्लूड फॉर इंश्योरेंस इन हर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोनों का 12 मंथ्स का कितना बन रहा है, क्योंकि ये आपको 2022 में पे किए हैं आपने। तो 1680 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 1 मंथ का बन रहा है $140 पर मंथ। 2023 में आपने 920 पे किया, विच इज $160 पर मंथ। ठीक है। तो बेसिकली ये अगर हम 31 मार्च के बारे में बात करें, तो 1 जनवरी से यहाँ से 3 मंथ्स जो हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं, तो ये टोटल जो है वो आपके बन रहे हैं 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स की जो पेमेंट आपको मिली है, 9 मंथ्स की पेमेंट आपको मिली है 2022 से, बिकॉज इसमें हम जनवरी और फैब वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। और बेसिकली जनवरी, फरवरी और मार्च इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी जो ईयर एंड है वो 31 मार्च को हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपके बन रहे हैं 9 मंथ्स 2022 से, और 2023 से जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स बन रहे हैं ईयर एंड तक, जो कि ईयर एंड 31 मार्च 2023 से हो रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 मंथ्स फ्रॉम दिस एंड 9 मंथ्स फ्रॉम दिस। सो 140 multiply by 9 is equal to $260, एंड यहाँ से 3 मंथ्स हैं 2023 से, तो 160 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू $480। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अब, कि टोटल इस साल में कितने जो है वो एक्सपेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। 740। B is your right option. Which item is added to the profit for the year in a partnership appropriate account? ठीक है। appropriation account, इंटरेस्ट और कैपिटल इसमें इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इंक्लूड होता है। ठीक है। पार्टनर्स ड्राइंग भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, करंट एसेट, करंट अकाउंट का पार्ट है, और ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। बेसिकली प्रॉफिट के अंदर जो है वो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट
जो होता है वो बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर ऐड किया जाता है. सो बी इज योर राइट ऑप्शन. Abby and Annie are in partnership. Annie is entitled to an annual profit, annual partnership salary of $3,000, and they share residual profits and losses equally. The profit for the year ended 31st August 2022 was 12,600. On 1st September 2021, the partners' current account balance were as follows. तो ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है, ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, बिकॉज डेबिट बैलेंस किसी भी पार्टनर के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होता है. So what was the credit balance or Ernie's account? Ernie's current account on 1st September 2022. अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो हम एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं. तो प्रॉफिट है आपका 12,600. इसमें से आप सैलरी लेस करोगे जो कि है $3,000. तो आपके पास जो टोटल आंसर आ रहा है विच इज 9,600. ठीक है, तो इसको अब दोनों में बेसिकली इक्वली डिवाइडेड है प्रॉफिट, तो 2 पे डिवाइड करते हैं तो विच इज इक्वल टू हर एक पार्टनर के हिस्से में $4,800 आएंगे. ठीक है, तो एनी के अकाउंट में बेसिकली पहले ही एक नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको हम -$1,400 लिखेंगे, और इसमें ऐड होगा इसका आपका प्रॉफिट विच इज $4,800, एंड इसकी सैलरी भी ऐड होगी इसके अकाउंट में 3,000. So basically we have $6,400 answer. What is meant by the term equity? Equity का मतलब क्या होता है? Dividend paid to ordinary shares नहीं, मतलब equity included नहीं है. Funds raised through borrowing. This is not interest paid to debentures नहीं. Total funds provided by the shareholders. हाँ जी, जितने भी शेयर्स आपके इन्वेस्टेड हैं बिजनेस के अंदर वो आपकी इक्विटी है. During the financial year, AB Limited paid debenture interest, which is $1,400 relating to that financial year. At the end of the year, debenture interest 700 was accrued. How was debenture interest shown in the financial financial statements of the year? ठीक है, तो ये accrued है लेकिन है तो इसी ईयर के, और ये इस ईयर में पे किए गए हैं, तो ये दोनों जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे ऐड होंगे. $1,400 प्लस 700 इज इक्वल टू 2,100. तो इस ईयर के एक्सपेंसेस हैं और ये कहाँ जाएंगे? इनका स्टेटमेंट में. ठीक है, तो डिवेंचर की जो टोटल अमाउंट होती है वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा होता है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है. सो 2,100 बी इज योर राइट ऑप्शन. सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर डिवेंचर को जो इंटरेस्ट पे किया है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता. Which items are included in an income and expenditure account prepared for a sports club? ठीक है. Cost of new furniture purchased during the year for the club house. अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके एसेट के बारे में कोई भी बात नहीं होती. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हाँ, डेप्रिसिएशन आपके एक्सपेंस का पार्ट है. रेट्स फॉर द क्लब हाउस पेड इन एडवांस, तो एडवांस की अगर कोई पेमेंट है तो दिस इज बेसिकली करंट एसेट, तो हम इसको बल्कि इनकम स्टेटमेंट में से माइनस कर लेते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके लिखते हैं, तो दिस इज आल्सो नॉट योर पार्ट. सब्सक्रिप्शंस दैट रिमेन अनपेड बाय क्लब मेंबर्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, तो हाँ जी, ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं. सो बेसिकली 2 and 4 इज योर राइट ऑप्शन. Melody is a music club. The club holds a music concert once every year. Prizes are awarded to musicians selected by a judge.
क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेटेस्ट म्यूजिक कॉन्सर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिगल की है कॉन्सर्ट की, तो यहाँ पे प्रॉफिट का पूछ रहे हैं बेसिकली। तो ये इसमें जो है ये होगा आपका एड 1500 परचेज ऑफ कॉन्सर्ट। अब क्या क्या चीजें ऐड होंगी वो देख लेते हैं। परचेजेस ऑफ कॉन्सर्ट प्राइजेस 450, ये होगा आपका लेस, ये लेस है बेसिकली। सेल ऑफ कॉन्सर्ट प्रोग्राम्स ये ऐड होगा 150। पेमेंट ऑफ फी टू द कॉन्सर्ट जज ये भी लेस होगा। 1500 माइनस 450 प्लस 150 माइनस 250, सो ये हमारे पास जो है वो आ रहा है $950। सो ए इज योर राइट ऑप्शन। चले, a business provided the following information, the cost of raw material consumed। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो की है उसकी हमें कॉस्ट फाइंड करनी। ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो जाहिर सी बात है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी आपकी माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 आपके ऐड होंगे। एंड कैरेज इनवर्ड्स ये भी आपके लेस होंगे। ठीक है, तो 50,000 माइनस 60,000 प्लस 80,000 माइनस 2,000, तो ये आपके पास जो टोटल वैल्यू आ गई है वो है $72,000। तो ये आपकी कॉस्ट है रॉ मटेरियल कंज्यूम की। चलो, ओके। So Ashwin started a business as a taxi driver on 1st January 2022. His taxi cost $5,000 and he paid then $100 into a business bank account. He did not keep any accounting records. On 31st December 2022, he had $750 in the business bank account. His taxi was valued at $4,000 and he owed $50 to the garage of the repairs. During the year, he took 1,600 out of the business bank account as drawings. What was the profit for the year? ओके, सो अब हमें यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट फाइंड करना है। सो बेसिकली जो सबसे पहले हमारा ओपनिंग कैपिटल था, विच इज जो पैसा हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है जो टैक्सी इन्वेस्ट की गई है, तो ये है हमारा 5,000 प्लस 100 विच इज आर कैपिटल, मतलब 5,100 डॉलर। ठीक है, अब हम जो है वो फाइंड करेंगे अपना क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल में एक तो 1,750 अब पड़े हुए हैं एट द ईयर एंड बैंक में। ठीक है, प्लस 4,000 की अब वैल्यूएशन हो चुकी है आपके टैक्सी की। ठीक है, इसके अलावा माइनस हो गया है इसमें 50 जो आपका कैरेज रिपेयर है। 750, 1,750 एंड 4,000 एंड माइनस, इसमें से आपने वो भी हमने वो भी माइनस कर दिया, तो ये आपके पास बन रहा है, जस्ट लेट मी चेक। ओके, सो ये हमारे पास आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल विच इज 5,700। ठीक है, ओके। सो इसके अलावा हमने एक जो है वो ड्राइंग भी की है, विच इज $1,600।
वर्किंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5700 माइनस आपकी ओके, so 2200 is your profit for the year. A trader did not keep a complete set of accounts. He provided the following information for the year: opening trade payables दिए हुए हैं, closing दिए हुए हैं, payments and cash discounts. So purchases जो है वो हमने basically इस year की find करनी है. What are the purchases for this year? Okay, so हम बेसिकली क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला हम यहाँ पे पैटर्न फॉलो करेंगे. ठीक है. सबसे पहले ओपनिंग ट्रेड पेबल जो है वो आपके हैं 5000. इसमें आप बना भी सकते हो अगर आपको ट्रेड पेबल अकाउंट बनाना है, मतलब अगर आपको अम, बनाना है पीएलसी तो वो आप इसमें बना सकते हैं. परचेज लेजर इसमें आप बना सकते हैं. 5000 प्लस परचेजेस जो कि हमने अभी फाइन करनी है, हमें पता नहीं है कि वो कितनी है. ठीक है. और इसमें से माइनस होंगी जो आपने से पेमेंट्स की हैं सप्लायर को 3500, 35,000. इसके अलावा एक और चीज़ माइनस होगी जो कि हैं कैश डिस्काउंट्स. तो ये आपके पास आ गए $9800. सो परचेजेस आपने फाइंड करने हैं तो परचेजेस को आप यहाँ ले जाओ. 9800, सॉरी, ये आपकी क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स है. परचेजेस को आप यहाँ पे ले जाएं. 9800 माइनस 5000 प्लस 35,000 प्लस 3000. तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 42800. D is your right option. T Limited provided the following information: net profit before interest, profit for the year, equity at the year end, and 6% debenture. ओके. सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड करना है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, इंटरेस्ट सॉरी. और इसको अपने डिवाइड करना होता है नॉन करंट लायबिलिटीज पे. तो यहाँ पे आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो है 29200. के अलावा कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर आपने इसको डिवाइड करना होता है. तो हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल है वो ये है, क्योंकि इक्विटी भी कैपिटल ही होता है. इट इज़ 192,000. इसके अलावा जो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी है वो है $20,000 प्लस 20,000. और क्योंकि इसको परसेंटेज में फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So we have 13.77% आंसर. ठीक है. Okay. So Sabelo's liquid ratio was higher on 1st January 2022 than it was on 31st December 2022. What could have caused this? ठीक है. तो एसेट ट्रस्ट रेशियो जो है वो उसकी हायर है, तो इसका क्या मतलब है? सो बैंक जो एसेट ट्रस्ट रेशियो की एक फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स, लेकिन इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होती, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो अगर आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसमें भी अगर आपकी
जो हायर है, ठीक है। तो अगर आपके करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं करंट लाइबिलिटी से ज्यादा, तो इट मीन्स कि आपकी जो हाँ एसेट रेशियो है वो ज्यादा आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या रीजन है। बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज, तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होते हैं तो ये भी इसके रीजन नहीं है। इन्वेंट्री डिक्रीज, तो इन्वेंट्री तो इसके अंदर इंक्लूडेड ही नहीं होती। अदर पेएबल्स डिक्रीज, इसकी वजह से भी नहीं होता। ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज, हाँ ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हों तो फिर इसकी वजह से आपकी एसेट रेशियो हाई होती है। द फॉलोइंग ratios related to the business of Ava and Max. ओके, सो करंट रेशियो एवा की है 2.2:1, 2.4:1 है मैक्स की, 1.4:1 है आपकी एवा की, और 1.0:1 है मैक्स की, ठीक है। यहाँ पे मैक्स की करंट रेशियो एवा से ज़्यादा है, और यहाँ पे एवा की करंट लिक्विड रेशियो जो है वो मैक्स से ज़्यादा है। एन अकाउंटिंग स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वो आपकी कौन सी है? Ava can meet her current liabilities from her current assets more easily than Max. Ava can meet her current liabilities from her current assets more easily than Max. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे Ava की बल्कि कम है और Max की ज्यादा है, तो ये आपका गलत ऑप्शन। Ava can meet her current liabilities from her liquid assets more easily than Max. तो यहाँ पे हाँ जी, Ava की जो लिक्विड रेशियो है वो ज्यादा है Max से, so this is your right option. Max has insufficient current assets to meet his current liabilities. तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसके पास अच्छी एक करंट रेशियो है। Max has sufficient liquid assets to meet his current liabilities. हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। Max की जो करंट रेशियो है वो ज्यादा है। So basically 2 and 4 is your right option. So D is your right option. A cafe owner made no entry in her accounts for increased competition when another cafe opened nearby. तो जब भी अगर आपका कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो बट क्योंकि इसकी कोई भी मॉनेटरी टर्म में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। विच अकाउंट प्रिंसिपल वाज अप्लाइड, हिस्टोरिक कॉस्ट ये भी नहीं है, मटीरियलिटी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एसेट है जिसकी हमारी नज़र में मटीरियल की जो हमारी नज़र में जिसकी जो है वो एक वैल्यू है, उसको जो है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेपलर्स को या फिर लैपटॉप्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अगर एक बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका ज़्यादातर काम जो है वो लैपटॉप्स पे ही है, तो वो उसको रिकॉर्ड करेगी। सो दिस इज योर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। सो मनी मेजरमेंट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसकी कोई मॉनेटरी टर्म में वैल्यू है, तो हम सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑनर ने कोई एंट्री नहीं बनाई, बिकॉज कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। सो ये आपका जो है वो राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम साथ ही, नेक्स्ट पेपर भी हम लोग साथ ही करने लगे, विच इज यूरोपियन 3। मई जून का ही पेपर है ये 2023 का, और वो एडियर 3 है, तो ये हम करने लगे हैं इसके साथ ही। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग? तो ये सेम अभी रिपीट हुआ है, तो ये हमें पता था, अभी हम लोग करके आए हैं इसको। चलें, विच कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और आई थिंक ये भी रिपीट हो रहा है दोबारा से, ये हमारा डी वाला ऑप्शन था। ये भी अगेन रिपीट हो रहा है, केट और बैंक वाला।
ये भी अगेन रिपीट हो रहा है, थर्ड वाला। और इसमें हमने जो है वो क्रिएट को डेबिट किया था, सॉरी डिसऑनर हो गया, ठीक है। हाँ जी, इसमें हमने जो है वो क्रिएट को डेबिट किया था और बैंक को क्रेडिट किया था, कोई चेक डिसऑनर हो गया था, तो ये भी वही वाला ऑप्शन है। तो हम इसमें से सिर्फ वो वाले एमसीक्यूज कर लेते हैं जो हमारे रिपीटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये 4 वाला भी हुआ है, 5 वाला भी हुआ है, 6 वाला भी हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी हुआ है, ये 8 वाला भी हुआ है, और हाँ जी ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये 10 वाला भी, 11 वाला भी हुआ है, 12 भी हुआ है। आई थिंक कि ये सारे के सारे ही हुए हैं। 15 वाला भी रिपीटेड है, ये भी अभी किया है हमने, ये भी अभी किया है, ये भी अभी किया है, ये भी किया हुआ है, 17 वाला भी किया हुआ है, 18 वाला भी किया हुआ है। तकरीबन आई थिंक ये सारे के, क्योंकि मोस्टली इस तरह ही होता है, ये जो वेरिएंट्स वगैरह होते हैं ना, इसमें एक आधा कोई ऐसा वेरिएंट होता है जिसमें वो सेम सेम ही होता है। तो आई थिंक कि हाँ जी ये भी हुआ है, ये भी करके आए हैं अभी। हम्म, ये सारा का सारा रिपीटेड है। हाँ जी, ये सारा का सारा रिपीटेड है। चलें ठीक है, तो दोनों जो हैं वो सेम है। अभी आप देख सकते हैं ये 35 वाला एमसीक्यूज अभी हमने किया था, जो मनी मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट, तो वो अगेन इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो बेसिकली वेरिएंट 2 और वेरिएंट 3 बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत गुड हो गया जी, टाइम बच गया हमारा। चलें ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू पीपल। अल्लाह हाफिज।